Uh, First of all, I'm really feeling myself grateful that I'm sitting with some great personalities, because although I'm not a technical graduate, but I'm running one organization where now I need technical graduates. So there is a big concern, because as a developer, as a builder, what kind of competitions, what kind of challenges we are facing in the industry right now. And we know one thing, that as far as this particular industry is concerned, I myself can accommodate at least 2,000 technical graduates in this industry within the Delhi NCR specific region. Now, if we talk about this particular industry, now, I was observing from the first moment onwards that if there is one particular gap between providing raw material and the buyers are also sitting here and providing raw material. In terms of, now, the main requirement of this discussion, the outcome, what I believe now, if I consider myself that I am also in sync to take out maximum out of this participation. So as I had a word with Raghav also, and I'm totally agreed with Sharma ji. In my organization, there are more than 200 professionals. Out of 200 professionals, there are more than 35 sales engineers. But doing sales in my own organization. Now, if we talk about, although I consider myself as a rebellion as far as this education industry is concerned, all the time talking about figures, all the time talking about numbers, distinctions, nobody is talking about distinctions. Now, the deepest access, there is one more deepest access to this. We need to have some sort of career counseling department in every organization, so that we can explore at the time of giving admission to that particular student. I know all the TPOs are not really having accountability for that particular department in your organization. I know that. But at the same time, if I consider that all of you are representative of your own organizations, in that case, if we are having deepest access towards this particular blind spot, where we can see that all of the students, those who are coming to take admission in that particular college for that particular technical degree, now that particular student is coming only because of family obligations. That particular, if we are going to correct all the data, that how many technical graduates we are having, and how many technical graduates are getting the right chance, and how many technical graduates are going to they are not waiting only to get the job, but they want to excel as well. Now, as per their choices, they have taken their decisions, or out of some sort of obligation as a status symbol, that they are having degrees, even if they are not having distinctions. If we talk about distinctions हमेशा practical experience से ही आ सकते हैं. Having 96% or having 98% theoretical part, as Mr. Sharma said, that having best percentage students, and because of one particular impression, that first impression is the last impression, we can get the chance. But as far as retaining that particular employee is concerned, he is going to face the competition as well within the organization, and organization is going to face the competition in the market. So if I consider myself that here I am a buyer, and this is my great concern, that if I am going to hire 200 technical graduates for my own organization, in that case, trust me, if I am going to observe that particular CV of the candidate, in that CV I am going to observe that what kind of technical experience he has taken. As one of the doctor in government hospital is having experience, I'm really hats off to that particular example of yours, that as far as every concern is related with human values. In a hospital, we are saving lives. If we are going to construct some buildings, or if it is related with nanotechnology, that we can reduce the recycle of the equipments, whatever it is, if we are really
concerned about the human values, in that case, in every organization, technical professional used to have one sort of attitude. और एटीट्यूड यानी कि डिस्टिंक्शंस उसके पास तब आएंगे जब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर आया। अगर डॉक्टर्स को कंपलसरी है एक मेडिकल कॉलेज के आसपास ही कैंपस होना, मेडिकल कॉलेज के पास में हॉस्पिटल है तो उसके पास सारी वो फैसिलिटीज़ हैं और वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहा है क्योंकि ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है वहाँ पर। और अगर हम हर ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो बहुत सारे ड्रीम्स इन्वॉल्व हैं, बड़े सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लाइक वी आर स्ट्रगलिंग इन दिस इंडस्ट्री। 85% बिजनेस 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी एक एम्प्लॉय को इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने के लिए मुझे अपना खुद का कॉस्टिंग लगाना हो। मैं चाहता हूं कि फ्रॉम द डे वन मेरा कॉस्ट का यूटिलाइजेशन हो उस एम्प्लॉय पर। मैं चाहता हूं कि उसके पास में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे बेस्ड वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। जब उसके सामने कोई हर्डल्स आ रहे हैं तो उन हर्डल्स को ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट कर सके। अगर मुझे एक ऐसा, ये मेरी नीड है, मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ और एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर विद इन द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन माई ओन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो मैंने एक इनिशिएट किया है इस इंडस्ट्री में रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स क्रिएट करने के लिए, सो दैट एक पोर्टफोलियो मैनेज किया जा सके और टेक्निकल नॉलेज दी जा सके इन्वेस्टर्स को रिलेटेड विद दिस इंडस्ट्री। ऐसे इस टेक्निकल फील्ड का एग्जांपल देके मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, या मुझे अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, या मुझे अपना रॉ मटेरियल का देखरेख करना है, या मुझे लेबर से डील करना है, मेरा टेक्निकल ग्रेजुएट क्या लेबर से डील करने के लिए वो लीडरशिप क्वालिटी रखता है? क्या वो ऐसे हर्डल्स जब उसके सामने वो फेस करेगा तो क्या वो ब्रेक थ्रू में खुद से कन्वर्ट कर पाएगा? अगर इन सब क्वेश्चंस के अगर मैं आंसर देखूं तो मैंने जो कुछ अपना समराइज किया मैं बड़े शॉर्ट में आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट मुझे लगता है कि एक करियर काउंसलिंग अलग से एक सेल हो जहाँ पर एक्सप्लोर किया जाए कि किस टेक्निकल फील्ड के लिए कौन इंडिविजुअल जाना चाहता है, उसका क्या उससे रिलेटेड उसका एस्पिरेशन है या क्या उसके गोल्स हैं। उसके बाद आउट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस जो भी हमारे पास सप्लाई आ रही है, जो सप्लाई आना है उसका जो डीपेस्ट एक्सेस है कहाँ से आना है, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन चॉइसेस नॉट ऑन ऑब्लिगेशंस। अब जो भी टेक्निकल ग्रेजुएट किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे रियल एस्टेट से है या आईटी से है, चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, वो किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है तो उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एसएमईज हायर करना चाहते हैं। जैसे आपने बड़े अच्छे से बोला कि आईटी इंडस्ट्री की सक्सेस का रीज़न क्या है कि उन्होंने जो एक मिड सेगमेंट है उसको चूज़ किया और वहाँ से उन्होंने एक्सप्लोर किया और अपने ही खुद के ट्रेनिंग, इट इज़ नॉट अबाउट 40 साल से अगर हम लोग राइट और रॉन्ग एक्सप्लोर कर रहे हैं, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, सो इट्स अ बिग ट्रैप। ह्यूमन माइंड के ही 2 हिस्से हैं, रेशनल माइंड है, तभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सो ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है। राइट और रॉन्ग की बात नहीं है, मैटर ये करता है कि मैं उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना एसोसिएशन करने के लिए तैयार हूँ, या कोई भी एक एम्बिशियस बिजनेसमैन जो इंस्टीट्यूट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट मिले और वहीं से उनको जॉब मिले। तो ड्यूरिंग द करिकुलम अगर एक मेडिकल कॉलेज की तरह से हम लोग ह्यूमन लाइफ वहाँ वैल्यू है, वहाँ पर हम इतने सेंसिटिव हो सकते हैं, तो हमें इस पर्टिकुलर एरिया में उतने सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि वो प्रैक्टिकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक करिकुलम के ही दौरान कुछ घंटे इस तरह से स्क्वीज करें या न्यू एज थ्योरीज डेवलप करें बेस्ड ऑन, जैसा आपने कहा, आज के जो एक सक्सेस जो एक्सपीरियंस है, जो भी हम लोग R&D करके मार्केट में देखते हैं, आज की डेट में जो नई सक्सेस है उस पर बेस्ड थ्योरीज हैं, जो भी टेक्निकल थ्योरीज हैं, न्यू एज अपना करिकुलम डेवलप करें। उसके साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं अकोमोडेट करें कि वो मिडवे या कहीं से भी जो एक लास्ट के 6 मंथ्स है या जो भी एक टेन्योर है किसी पर्टिकुलर डिग्री को लेने का, सो दैट वो डिग्रीज के साथ साथ उस इंस्टीट्यूशन से कुछ डिस्टिंक्शंस भी लेकर आए। इससे हम लोग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे होंगे कि हमारा जो एक बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर होना पड़ता है कॉस्ट कटिंग पर, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर होना पड़ता है कि वो फायर करे लोगों को। एज अ बिजनेसमैन मुझे सब लगता है कि इस टाइम का इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर मैंने किसी एम्प्लॉय पर 6 महीना इन्वेस्ट किया तो मैं ये भी चाहूँगा कि वो रिटेन करें मेरे पास। सो ये सारे चैलेंजेस को देखते हुए अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक करियर काउंसलिंग के थ्रू रिक्रूटमेंट करें, उसके बाद सेकंड स्टेप है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग कुछ अकोमोडेट करें,
और थर्ड स्टेप है कि हमें जो डिस्टिंक्शन और डिग्रीज में अगर डिफरेंस की बात करें, अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट या कोई भी पीएसयू या कोई भी एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हमारे वेल ट्रेंड मैन पावर को हायर करना चाहते हैं, और कोई भी एक टेक्निकल ग्रेजुएट एक्चुअली एक लीडरशिप वाला ही रोल प्ले है, कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के साथ ही डील करना है, चाहे वो अपनी लेबर के साथ डील करना है, चाहे वो एक टीम प्लेयर ही सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए सपोर्ट कर सकता है। और टीम प्लेयर के लिए मैंडेटरी है कि टीम प्लेयर उस टीम में लोगों के साथ डील कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेट को अगर डिफाइन करें हम, कम्यून, यानी कि जब कोई भी एक कन्वर्सेशन हो रहा है तो सब लोग एक तो फील करें ना मुद्दे से। सो वो अपने हाथ में है कि हम लोग किस तरह से अटेंटिवनेस दूसरों की ले सकते हैं या क्या सॉल्यूशन हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में निकाल सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अगर मेरा रिप्रेजेंटेशन इस इंडस्ट्री के बिहाफ में आप लोगों से इस बात को शेयर कर रहा हूँ कि कितने इन विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years ये इंडस्ट्री को कम से कम 2 से 3 लाख सेल्स प्रोफेशनल्स, HR, ट्रेनिंग, ऑपरेशंस, टेक्निकल में IT, सिविल इंजीनियर्स, और आज की डेट में रियल एस्टेट में जो बहुत सारे फीचर्स, वैल्यू एडिड सर्विसेज जो ऐड की जा रही हैं, सो उसमें और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स, फुली लोडेड सर्विस अपार्टमेंट्स, ये सब। सो एक जो मैनेजमेंट लेवल पर कोई भी एक बिल्डर ये सोचता है अगर मैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला हूं तो मेरे पास वो टेक्निकल टीम अवेलेबल है या नहीं है। 2 से 3 लाख प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 50% टेक्निकल ग्रेजुएट्स चाहिए विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years। ये एक सिर्फ एक इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आज की डेट में अगर मुझे आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है, सपोज कीजिए कि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड आज की डेट में मिस्टेक करने के लिए कौन स्पेस देता है? मिस्टेक करने के लिए कोई स्पेस नहीं देता। मेरी अपनी वाइफ से जब मेरे अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग को लेकर बात होती है तो जो भी किसके अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हैं, अलाउ नहीं करते किसी को भी मिस्टेक करने के लिए, लेकिन पास्ट में जो मिस्टेक होती है उसी को तो एक्सपीरियंस कहा जाता है प्रेजेंट पे। जो पास्ट में हमने मिस्टेक कर दी, उससे जो तजर्बा लिया उसको आगे एग्जीक्यूट करा। मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो कहां से फिर करियर बनाएंगे? मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, अभी मोर देन 900 करोड़ के हम लोग टर्नओवर के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और हम लोगों ने ITI से काम चलाया, हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ठेकेदार हैं उनसे काम चलाया, हम लोगों ने अपनी टेक्निकल नॉलेज, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बट कुछ इंजीनियर्स हायर किए, उनको मैनेजमेंट ट्रेनी हायर किया, उनके साथ काम चला रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और उन्हीं को हायर करने वाले हैं। बट हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और फिर बार्गेनिंग हो रहा है कि कितने टाइम का ट्रेनिंग देने वाले हैं आप, और कितना उस ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड देने वाले हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, प्रेशर इज देयर, हमें सारे आंकड़े ठीक करने हैं, प्रेशर इज देयर। सो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि इंडस्ट्री में बहुत एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए, और अगर मैं भी पेट्रियटिज्म थोड़ा सा भी रखता हूँ और इस कंट्री के लिए सोचता हूँ, तो मेरा पार्टिसिपेशन ये ज़रूरी है कि मैं मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकूँ टेक्निकल ग्रेजुएट्स को। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, दोज हु आर सिटिंग हियर एज TPOs और एजुकेशनिस्ट और बिग कॉर्पोरेट्स, दैट वी शुड कम टुगेदर एंड वी शुड रिजॉल्व दिस। थैंक यू। Any questions? आपकी आवाज ऐसे ही। अच्छा चलिए, thank you so much for the compliment. See, what we have seen actually, we have been discussing the MSME sector is a big employer, लेकिन MSME सेक्टर में टेक्निकली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स अभी तक बहुत कम जा पाए हैं। हिस्टोरिकली वो डेवलप करके जो 2 करोड़ की यूनिट थी आज वो 25 करोड़ की हो गई, जो 25 की थी वो आज 100 करोड़ पे आ गई, जो 100 करोड़ की थी वो 500 करोड़ पे आने जा रही है। लेकिन काम उनका वो टेक्नीशियन, मिस्त्री और उसी से चल रहा है जो उनके पापा के ज़माने से चले आ रहे थे, वो बहुत रिलायबल है, वो मैनेज कर देंगे, उसी ढंग से चल रहा है। नए वो इंडक्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको क्या आती है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है बहुत लिटिल, जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स का है वो जाके तुरंत कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में नहीं होते हैं, और MSMEs उनको ट्रेन करने का धैर्य और गाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होता नहीं है। तो यहाँ जाके वो बॉटलनेक आता है। अगर ट्रेन वहाँ पर कोई इंजीनियर चला जाए तो ही क्रिएट्स वैल्यू, बिकॉज आई हैव बीन अ कंसल्टेंट टू मेनी MSMEs एंड दे हैव डन वेरी वेल सक्सेसफुली, ओनली बिकॉज
I had 25 years of exposure in that particular industry domain, so I could bring lot of value. और 14, 15, 16 लोग हमारे वो बन गए, मतलब I could not attend to them, इतना भी टाइम नहीं था. But whatever I could, उससे हमारी ये समझ में आया कि उस लेवल की ट्रेनिंग हम अगर करें तो एक नॉवल एक्सपेरिमेंट एक सज्जन ने किया, IIT खड़गपुर के पास आउट हैं बहुत पहले के 1968 के, अब वो रिटायर हो गए, तो एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए या जैसे भी कहिए, उन्होंने एक नया वो किया. उन्होंने 20, 25, 30 MSMEs के साथ मिल करके कहा कि भैया हमारे पास इंडस्ट्री का 25-30 साल का अनुभव है, हम क्या करेंगे, मिडिल एंड कॉलेजेस से लो एंड लड़के खाली लेंगे और उनको 15-16 हज़ार रुपये खाली आपको देना होगा. हम उनसे 30,000 रुपये लेंगे, पोस्ट डेटेड चेक के रूप में लेंगे, तो 4 महीने उनको ट्रेन करेंगे और आपके कारखानों में भेजेंगे. आपके यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो हम सब समझाएंगे घूम घूम के उनको. एंड दैट इज अ हाईली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट. दे हैव पिक्ड अप अबाउट 20 स्टूडेंट इन द फर्स्ट लॉट, ऑल द 20 गॉट प्लेस्ड. और 15,000 उन्होंने प्रॉमिस किया, कहीं 18,000 मिल रहा है, किसी को 20,000 मिल रहा है, किसी को 24 में. एंड द MSMEs आर वेरी हैप्पी. तो अगर ये गैप ब्रिज हो किसी तरीके से, तो आई थिंक विद मोर देन 40% कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 40 से ज़्यादा होगा MSME का, कम नहीं होगा. एंड अगर वहाँ हमारे टेक्निकल ग्रेजुएट्स अगर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएं तो उनके ग्रोथ के लिए भी बहुत फायदा, बिकॉज फ्यूचर में दे आर गोइंग टू नीड दोज एग्जीक्यूटिव कैपेबिलिटीज. छोटे लेवल पे आपने कर लिया, आप आज जो है स्मॉल से माइक्रो से स्मॉल में आएंगे, स्मॉल से मीडियम में आएंगे, कभी मीडियम से लार्ज में भी आएंगे. तो आपको मैन पावर उस लेवल की अब चाहिए होगी. यू कांट डू विदाउट दैट इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. लेकिन ये कैसे ब्रिज हो, यही वो है. इस तरीके के प्रोफेशनल्स जो अगर इसको लें, या जैसे आप बोल रहे हैं इस तरीके से 5-7 लोग मिलकर के कंसोर्टियम बना लें, वो कहें कि ठीक है, वी आर हायरिंग 20 पीपल एंड दिस इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम, अंडरगो दिस फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, वील एब्जॉर्ब यू हियर, वी हैव पिक्ड अप यू बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल, टेक दिस ट्रेनिंग फॉर 4 months, कम बैक टू अस, विल सेलेक्ट एंड डिसाइड हु गोज वेयर. ऐसा कुछ अगर वो हो तो आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मिडिल कॉलेजेस कैन गेट एब्जॉर्ब. जो उन्होंने बताया बहुत ठीक बताया. आई हैव वन एक्सपीरियंस और वन एग्जैक्ट दिस थिंग व्हिच हैज हैपेंड ओवर द लास्ट 2 years एंड दैट मिस्टर सेठी इज डूइंग ग्रेट. तो वो बोले हम रिटायर हो चुके हैं, अब हम यही करना चाहते हैं कि कम से कम अपना वो ले डाउन करने के पहले हम कम से कम 200 ग्रेजुएट्स को जो है एम्प्लॉयमेंट दिला दें ओवर नेक्स्ट 3-4 years, देन आई विल कॉल इट अ डे. तो excellent sir.